Hello engineers, good morning. We are in the end of the chapter number 9 differential equation. વિકલ સમીકરણના એન્ડમાં છીએ આપણે. Then we will start chapter number 10, that is vector algebra, સદિશોનું બીજગણિત. Very easy chapter. 10th is easy, 11th is also easy, right? So today we are going to start question number 8 of miscellaneous exercise. The question is, find the equation of the curve passing through the point 0 pi by 4 and whose differential equation is this. એવા વક્રનું સમીકરણ મેળવો કે જે 0 pi by 4 માંથી પસાર થતું હોય અને જેનું વિકલ સમીકરણ આ હોય. So differential equation is given, means हमें वहां से सॉल्यूशन लाना है. टू डिटरमाइन द सॉल्यूशन we will integrate it. આપણે એનું સંકલન કરીશું, then we will get the solution. सॉल्यूशन में पहले हमें मिलेगा जनरल सॉल्यूशन, मतलब व्यापक उकेल. आफ्टर दैट putting the initial conditions we will get particular solution. व्यापक ઉકેલમાં આપેલ પ્રારંભિક શરતોની કિંમતો મૂકીએ એટલે આપણને વિશિષ્ટ ઉકેલ મળે છે. ये सब आपको पता है, right? So nothing is new, right? Let us start. Differential equation is given. Sin x cos y dx plus cos x sin y dy इक्वल टू 0. जब तक मैं इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करूंगा, मतलब वियोजनीय चल स्वरूप में नहीं लाइए, वी कैन नॉट इंटीग्रेट इट, क्योंकि हमारे सिलेबस से बाहर चला जाएगा. सो टू मेक द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, आप शांति से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये वाली टर्म को मैं सामने ले जा रहा हूं. सो यहां बचेगा cos x sin y dy and it will be minus sin x cos y dx. अब dy के साथ y वाली टर्म्स, dx के साथ में x वाली टर्म्स लाने के लिए मैं cos y को यहाँ डिनो में और ये cos x को सामने डिनो में दूंगा. Therefore it will be sin y upon cos y dy is minus sin x, और ये cos x भी सामने गया, cos x dx, which is वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यानी वियोजनीय चल स्वरूप છે. इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, બંને બાજુએ સંકલન કરતા sin y upon cos y, that will be tan y dy equal to minus integration tan x dx. कितना इजी हो गया. What is integral of tan? That is log mod sec x, means यहाँ पे log mod sec y equal to minus log mod sec x plus log c, because whole atmosphere is in log में. ये log को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा. सो log mod sec x plus log mod sec y is log c. Addition of log means multiplication in log, so sec x into sec y is equal to log c. We can remove the log. After removing the log, it will be sec x into sec y is equal to c.
व्हेन वी टेक इट्स रेसिप्रोकल, अगर आनु આપણે વ્યસ્ત લઈશું तो ये फॉर्म बनेगा cos x into cos y is 1 upon c is also constant, that's why it is c, right? तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन, व्यापक उकेल थयो। द कर्व इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, भाई वक्र आ बिंदु माथी पसार થાય છે, so this will satisfy this equation. So when we take x equal to 0 and y equal to pi by 4, we will get the value of c, arbitrary constant, parameter also it is known as, અને આપણે એને સ્વૈર અચળ કહીએ છીએ. So when x is 0, y is pi by 4, putting these values, so cos 0 into cos pi by 4 is c. Cos 0 is 1, cos pi by 4 is 1 upon root 2 is c, therefore c is equal to 1 upon root 2. अब ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो, so cos x into cos y is 1 upon root 2, which is required answer, which is required answer. कितना इजी। Now question number 9, find the particular solution of the differential equation. આપેલા વિકલ સમીકરણ માટે વિશિષ્ટ ઉકેલ મેળવો। હવે તમને ખબર જ છે કે જ્યારે વિશિષ્ટ ઉકેલ મેળવવાનો હોય ત્યારે કન્ડિશન્સ તો આપેલી હોય જ, y equal to 1 when x equal to 0, x નું મૂલ્ય 0 હોય ત્યારે y 1 છે। So we have to find the particular solution, मतलब solution ही लाना है, nothing is new, everything is same, right? चलो let's start. Differential equation is what? One plus e raised to 2x into dy plus e raised to x into 1 plus y square dx equal to 0. जब तक ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं बनेगा आगे बोलने की जरूरत है नहीं। सो हमारा गोल, हमारा ट्राई क्या रहेगा, मेक इट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। फॉर दैट ये dx वाली टर्म में ले जाऊंगा सामने, सो देयरफॉर 1 प्लस e raised to 2x into dy equal to minus e raised to x into 1 plus y square dx। क्लियर? अब 1 plus y square को मैं सामने ले जाऊंगा और ये 1 plus e raised to 2x को ऑपोजिट साइड में, then it will be variable separable form। therefore देखते रहना, ये 1 plus y square यहाँ पे आया, so 1 upon 1 plus y square dy equal to minus e raised to x upon 1 plus e raised to 2x dx, which is variable separable form। आप देख सकते हो कि dy के साथ y वाली टर्म्स और dx के साथ x वाली टर्म्स है। फॉर दैट which is variable separable form, integrating on both sides, integrating on both sides, so integration 1 upon 1 plus y square means y square plus 1 dy equal to minus integration e raised to x upon e raised to 2x plus 1 dx। पर्टिकुलर यहाँ पे मुझे सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा, आदेश लेना पड़से, धारना पड़से, क्योंकि फॉर्म हमें दिख रहा है। किसके लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे कि भाई dx के साथ e raised to x है, तो ऑब्वियस वी विल सब्स्टिट्यूट फॉर e raised to x, substitute e raised to x equal to t, by differentiating it will be e raised
रेस टू टी, सॉरी हाँ, e रेस टू x dx is dt, एवरीथिंग वी हैव। देखो e रेस टू x dx भी है, तो सब कुछ टिका हो यहाँ पे। देयरफॉर इंटीग्रेशन 1 अपॉन y स्क्वायर प्लस 1 dy इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन e रेस टू x dx is dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1। दोनों साइड सेम फॉर्मूला आ गई। चलो यहाँ पे आंसर विल बी tan इनवर्स y is equal to minus tan inverse t plus c। tan inverse t में t की वैल्यू वापस रखो और प्लस करके लेफ्ट हैंड साइड में लाओ। सो tan inverse t एक स्टेप ज्यादा लिख रहा हूं, प्लस tan inverse y is c, putting the value of t, tan inverse e raised to x plus tan inverse y equal to c। Now we have initial condition, આપણે પ્રારંભિક શરત આપેલી છે y is 1 when x is 0, y is 1 when x is 0 रखने पर tan inverse e raised to 0 plus tan inverse 1 is c। e raised to 0 will be 1, तो ये भी tan inverse 1 हुआ। tan inverse 1 means pi by 4 plus pi by 4 equal to c। 2 times pi by 4 means it will be pi by 2। c की वैल्यू हमें pi by 2 मिली, वापस इसे यहाँ पर रखेंगे, then it will be particular solution। so tan inverse e raised to x plus tan inverse y is equal to pi by 2, which is जिंगो आंसर। कितने इजी सम्स है, आराम से करो, आराम से आंसर भी आएंगे, राइट आंसर भी आएंगे। सो प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई उकेल मेड़ो, इट इज ओनली द क्वेश्चन। पर क्वेश्चन देख के थोड़ा ये तो समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है। एक सम आगे आया हुआ इस टाइप का। यहाँ पे देखो इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे पता चला मुझे? तो मुझे तो पता है ही, पर आपको भी समझा दूं कि जब क्वेश्चन के अंदर पहले से ही ऑलरेडी इट इज गिवन दैट y अपॉन x या x अपॉन y फॉर्म, तो आपको समझ लेना है कि वो हमेशा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। जेने આપણે समपरिमाण विकल समीकरण कहीશું, उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको पता है। भाई सिलेबस में हमारे पास दो ही मेथड बची है, एक डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सेकंड वन होमोजेनियस समपरिमाण, बाद में वेरिएबल सेपरेबल, देन सॉल्व इट, राइट। सो हमारे पास दो ही तो मेथड है। तो पहले से ही अगर हमारे पास y अपॉन x या x अपॉन y फॉर्म क्वेश्चन में हो, तो आपको समझ लेना है कि वो हमेशा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, एंड इट इज। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें हमेशा dy by dx को सब्जेक्ट बनाना होता है। तो लेट अस स्टार्ट। मैं dx सामने और ये पूरी टर्म यहाँ पे लाऊंगा। बिफोर दैट मैं एक स्टेप इसे सिंप्लीफाई करूंगा, जैसे y इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन वाई dx इक्वल टू x इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन वाई प्लस y स्क्वायर dy। therefore x into e raised to x upon y plus y square dy equal to y into e raised to x upon y dx। मैंने इंटरचेंज कर दिया दोनों के प्लेस, LHS को RHS में और RHS को LHS में। अब dx यहाँ और ये वहाँ, therefore dy by dx it will be dy, sorry जब तक हमारे पास x upon y फॉर्म है
वी विल मेक इट dx by dy। तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमें dx by dy मिलेगा। अगर आपके पास y upon x है तो dy by dx को सब्जेक्ट बनाओ, बट व्हेन यू हैव dx by x upon y, सो आप dx by dy फॉर्म बनाओ, डोंट मेक dy by dx, राइट। तो मैं यहाँ पे dx by dy फॉर्म बनाऊंगा, फॉर दैट dy को लेफ्ट हैंड साइड में और इसे सामने, सो देयरफॉर dx upon dy equal to x into e raised to x upon y plus y square upon y into e raised to x upon y। अभी हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको पता भी है। टेकिंग x upon y is v, taking x upon y is v, मतलब we will take x is equal to vy। अगर y upon x फॉर्म होता तो हम y is equal to vx लेते, but we have x upon y form, so we will substitute x equal to vy। Now differentiating, we will make this form, differentiating with respect to y, with respect to y, LHS will be dx by dy equal to first as it is derivative of second plus second as it is derivative of first, dv by dy। याद रखना ये y के रिस्पेक्ट में हो रहा है x के नहीं, राइट। चलो सब कुछ यहाँ पे टिका। Therefore in place of dx by dy we will write v plus y into dv by dy equal to x means vy into e raised to v plus y square is y square upon y is y and e raised to v। अब ऊपर नीचे से y कॉमन निकल के कटेगा, देखो, सो इक्वल टू y कॉमन निकल के कटा, then v into e raised to v plus y upon e raised to v। अब मुझे यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाना है। बिफोर दैट ये स्टेप कॉमन है कि ये v को सामने ले जाओ, एंड देयरफॉर इट विल बी y into dy by dx equal to y into dy by dx, sorry, dx by dy, dv by dy, y into dv by dy equal to v e raised to v plus y upon e raised to v। ये v सामने गया, अब e raised to v will be LCM, therefore y into dv by dy equal to v into e raised to v plus y, ये हो गया LCM, माइनस v into e raised to v upon e raised to v, बस v into e raised to v, चल बसा, कितना इजी हो गया। Therefore y into dv by dy equal to ऊपर बचा y upon e raised to v, ये y भी गया, तो अब हमारे पास बचेगा, अब मैं सीधा इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, then e raised to v dv is dy, e raised to v dv is dy, which is variable separable form, which is variable separable form, integrating on both sides, integration e raised to v dv is integration dy, or you can say 1 dy। चलो इंटीग्रल ऑफ e raised to v is e raised to v equal to y plus c, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन।
अगर आपको यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस दी है तो यहाँ रखने के बाद यू विल गेट सी, वो रखेंगे देन इट विल बी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अदरवाइज इट इज द आंसर। और यहाँ पे कंडीशन नहीं दी है, सो विच इज अवर जिंगो आंसर। कितना इजी है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। આપેલા વિકલ સમીકરણનો વિશિષ્ટ ઉકેલ મેળવો, and for that the initial condition is given. It is little हटके सम, आपको थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी होगी। जब मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन चलाई तब मैंने बोला था कि x is independent variable and y is dependent variable। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में x એ स्वतंत्र चल છે જ્યારે y એ सापेक्ष चल છે। मतलब जहां पर भी हमने सब्स्टिट्यूशन लिया है, जहां पर भी कुछ भी सब्स्टिट्यूट किया तो y को हमने रिमूव किया था, x को नहीं, बिकॉज x इज मेनी रो। तो यहाँ पर भी बुक में हमें हिंट दे रखी है कि सब्स्टिट्यूट x माइनस वाई इज t। अगर नहीं भी बोला होता तो भी लेने वाले थे, पर जब x माइनस वाई के लिए t सब्स्टिट्यूट करेंगे वी विल रिमूव y, x तो रखेंगे ही। राइट। सो लेट अस स्टार्ट। इट इज लिटिल हटके सम, याद रखना। डिफरेंशियल इक्वेशन इज x माइनस वाई इंटू dx प्लस dy इक्वल टू dx माइनस dy। अगर आप यहां से डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाने जाओगे आप फंसोगे, तो यहां पे आपको सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट x माइनस वाई इज t। अब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, पर किसी के भी रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा। सो डेरिवेटिव ऑफ x विल बी dx, derivative of y is dy and the derivative of t will be dt। अब मुझे यहाँ पे किसी एक, जैसे मैंने t एंटर किया तो मुझे कोई एक वेरिएबल यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, तो हम y को रिमूव करेंगे। मतलब मैं dy को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, so dx minus dt will be dy। therefore dx minus dt is dy। बोलो इतना समझ में आ गया। सो इन प्लेस ऑफ dy आई विल राइट dx माइनस dt। सब कुछ यहाँ पे रखने पर देखो x माइनस वाई की प्लेस पे वी विल राइट t। सो देयरफॉर t dx will be as it is into bracket dx। now in place of dy we will write dx minus dt plus dx minus dt equal to dx is dx and in place of dy we will write dx minus dt। dx plus dx will be 2dx, so 2t dx minus t dt equal to dx minus dx plus dt। पेज में जा रहा है कि नहीं? चलो dx dx चल बसा। Therefore ये t वाले टर्म में ले जा रहा हूं सामने, so 2t dx equal to t dt plus dt means 1 plus t dt। अब मुझे यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाना है, फॉर दैट ये t को मैं सामने ले जाऊंगा। so 2 dx is अपॉन में t आएगा, then it will be 1 upon t plus 1, t से डिवाइड कर दिया, dt which is variable separable form, which is variable separable form। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है तो मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, so 2 integration 1 dx is integration 1 by t plus 1 dt।
the integral of 1 with respect to x will be x equal to 1 upon t का होगा log t plus 1 का t plus c। अब t की वैल्यू वापस रखो, therefore 2x equal to log x minus y plus x minus y plus c। ये x minus y को मैं ले रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड में, so 2x minus x will be x, y यहां पे प्लस होगा इक्वल टू log x minus y plus c। अब ये वैल्यू रखेंगे when y is minus 1 when x is 0, so देखो therefore 0 minus 1 equal to log 1 plus c, but the value of log 1 is 0, so c will be minus 1, therefore c is minus 1। ये वैल्यू यहाँ पे टिका दो, then answer will be x plus y equal to log x minus y minus 1 को भी आप यहाँ पे ले लो, so ये बनेगा x plus y plus 1 is log x minus y, which is ज़ीरो आंसर। बुक में भी यही फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, so it is very easy, so please write down this। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको होमवर्क में दे रहा हूं, उसके बाद 2-3 क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस पर है, वो भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। सो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस ऑफ दिस ईयर, इट इज लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर, राइट? बाकी सारे सम्स यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है और अकॉर्डिंग टू मी ये एग्जाम के लिए एकदम फिट सम है, चांसेस सबसे ज्यादा है, याद रखना। इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज प्रॉब्लम सम। हाँ, ओल्ड बुक में, गुजरात बोर्ड की बुक में ऐसे क्वेश्चंस बहुत दिए हुए हैं, पर हमारी बुक में एक ही सिलेक्ट किया हुआ है, राइट? चलो, पहले क्वेश्चन समझ लो। The population of a village increases continuously at the rate proportional to the number of inhabitants present at any time। मतलब किसी विलेज में जो पॉपुलेशन का रेट ऑफ इंक्रीज है, वो पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के फॉर्म में है, राइट? इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज was 20,000 in 1999 and 25,000 in year 2004, then what will be the population in the year of 2009? मतलब इक्वेशन हमें बनाना है, इसमें और कुछ नहीं है, ज्यादा एक ही चीज है कि इक्वेशन हमें, अभी तक जो सम्स थे उसमें इक्वेशन दिए हुए होते थे, यहाँ पे हमें बनाने हैं। चलो, यही क्वेश्चन गुजराती वाले भी समझ लो कि एक ગામની વસ્તીનો સતત વૃદ્ધિ દર તે સમયની વસ્તીના સમપ્રમાણમાં છે। જો 1999 માં ગામની વસ્તી 20,000 અને 2004 માં 25,000 હોય તો 2009 માં કેટલી હશે? ભાઈ, जो વસ્તીનો વૃદ્ધિ દર છે એ તે સમયે કોઈ પણ સમયે હાજર રહેવાસીઓની સંખ્યાના સમપ્રમાણમાં છે। The rate of increase of population is directly proportional to the number of the inhabitant present। मतलब जितने लोग हैं उसके रिस्पेक्ट में वो इंक्रीज हो रहा है। तो उसे स्टार्ट कैसे करेंगे? इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टअप है, वही बढ़िया है। सपोज एट, देखो इनिशियली तो कोई ना कोई तो होगा ही वहां पे, तभी तो पॉपुलेशन आगे बढ़ी है। तो इनिशियली वी कांट से व्हेन t is 0 पॉपुलेशन इज 0, तो आए कहां से? तो हम स्टार्ट यहां से करेंगे। सपोज एट टाइम t द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज p और y, आप कुछ भी ले सकते हो। सपोज एट टाइम t the population of village of is capital P, P for population।
टी समये ગામની વસ્તી p છે and rate of increase at time t is, હવે જો t समय वस्ती p છે, at time t the population is p, तो उसका जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। ये p ने p ना सीधे सीधा सम प्रमाण में हશે। therefore rate of increase of population at time t will be dp by dt। t સમયે તેની વસ્તીનો વૃદ્ધિ દર dp by dt કહેવાય। dp by dt का मतलब होगा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। t समय वस्तीनो वृद्धि दर। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है कि रेट ऑफ इंक्रीज जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीपल एट दैट टाइम, राइट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे therefore dp by dt varies as p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। बस यहां से बात खत्म हो गई। जैसे ही इक्वेशन आपका आ गया आपका काम इजी हो गया। कैसे देखो, therefore dp by dt equal to kp where k is constant। अब ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया तो अभी बाजी हो गई अपने हाथ में, क्योंकि हमारे पास दो ही तो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक जिसमें डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनता है जब सीधे सीधे वियोजनीय चल स्वरूप बने छे। दूसरा जिसमें होमोजीनियस में हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। बीजू जे परिमाण विकल समीकरण छे हम આપણે ધારી ન કરીએ છીએ, उसको छोड़ के हमारे पास और कोई मेथड भी तो नहीं है। तो मैं इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाऊंगा। फॉर दैट k इज कांस्टेंट, p लाऊंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड में, सो 1/p dp is k dt which is variable separable form। integrating on both sides, it will be integration 1/p dp is k इंटीग्रेशन 1 dt। चलो 1/p का इंटीग्रल होगा log p is kt 1 का t और प्लस c तो आएगा ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से हमारे पास दो कांस्टेंट हो गए, एक प्रोपोर्शनल का k और दूसरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। जब तक k और c नहीं मिलेगा हमें ये इक्वेशन काम में नहीं आएगा, ये सॉल्यूशन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि k और c मिलने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आपको पॉपुलेशन मिलेगी, पॉपुलेशन है तो आपको टाइम मिलेगा। फॉर दैट वी हैव सम क्लूज। फर्स्ट क्लू इज व्हाट? if the population of the village was 20,000 in 1994, so when t is 1994 तब आपको ये लेना है 20,000। अब ये जो T1994 है वो हमारे लिए तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया, वहीं से तो हमने हमारी स्टडी स्टार्ट की। तो हम 1994 को क्या बोलेंगे? t इक्वल टू 0, क्योंकि हमारी स्टडी वहीं से स्टार्ट होती है। तो 1994 मतलब हमारा ये स्टडी का इनिशियल पॉइंट हो गया। सो वी विल राइट इन दिस वे, व्हेन t इज इक्वल टू 0 the population was p is equal to 20,000। मतलब इनिशियली द पॉपुलेशन थी 20,000। मतलब क्योंकि मैंने 1994 से स्टडी स्टार्ट की, सो दैट विल बी इनिशियल पॉइंट फॉर अस, राइट। चलो, टेकिंग t इक्वल टू 0 एंड p इक्वल टू 20,000, सो log 20,000 is k into 0 plus c
therefore C is equal to log 20,000 putting into in इक्वेशन 2। अगर मैंने इसे इक्वेशन 2 में डाला तो C मुझे मिल गया जी। अभी K की बात करनी है हमें। सो देयरफॉर log P is equal to KT plus log C that is log 20,000 C that is log 20,000 equation number 3। Now for the second loop, what is second loop? In 2004 the population is 20,000। अच्छा 1994 को आपने इनिशियल पॉइंट गिना तो 2004 यानी कितना टाइम हो गया? यस 5 इयर्स। 1994 के 1999 के बाद आएगा 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 आ गया। सो 5 साल में ये पॉपुलेशन हो गई 25,000। सो हम लिखेंगे when t is equal to 5, when t is equal to 5 the population is 25,000। so ये भी यहाँ पे टिकाएंगे। चलो putting in this equation, so log 25,000 is equal to k into 5 plus log 20,000। log 20,000 को लिया मैंने LHS में। so log 25,000 minus log 20,000 is 5k। difference of log means division in log। log ની બાદબાકી એટલે log માં ભાગાકાર। तो 3 zeros कटेंगे, it will be 25 upon 20 is 5k। 5 5 जा 5 4 जा और भी कट रहा है। so 5k is log 5 by 4 and therefore k will be 1 by 5 log 5 by 4। ये k की वैल्यू मैं रखूंगा इक्वेशन 3 में। so putting in equation 3 it will be log p is equal to kt, k into t मतलब मैं ऐसे लिखूंगा t by 5 log 5 by 4 plus log 20,000 नंबर 4। देखो k और c हमें मिल गए। अब ये इक्वेशन से अगर आपके पास टाइम होगा तो आपको पॉपुलेशन मिलेगी और पॉपुलेशन होगा तो टाइम मिलेगा। मतलब તમારી પાસે જો વસ્તી હશે તો એ કયા સમયની વસ્તી જે ખબર પડશે। અગર તમારી પાસે સમય છે તો ત્યારે કેટલી વસ્તી છે એ ખબર પડશે। so what is the question? What will be the population of the village in 2009? भाई 2009 में कितने ईयर होंगे मुझे काउंट करके बताओ जल्दी से। यस एग्जैक्टली आफ्टर 10 इयर्स, क्योंकि 1999 को मैंने इनिशियल ईयर काउंट किया है। सो इन 2009 हमारे पास टाइम पीरियड हो जाएगा 10 इयर्स। सो आफ्टर 10 इयर्स व्हाट विल बी द पॉपुलेशन? तो मैं यहां पे लिखूंगा व्हेन t इज इक्वल टू 10, व्हेन t is equal to 10 find the population। so log p equal to 10 by 5 means 2, okay 10 by 5 log 5 by 4 plus log 20,000। 10 by 5 is 2, 2 गया ऊपर गया मतलब इसका स्क्वायर हो गया। so it will be 25 by 16 plus log 20,000। now addition of log means multiplication in log, so equal to log 25 by 16 into 20,000।
4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 4 zeros बचे हुए, अभी भी 4 से कटेगा, देखो 4 1 जा 4, एक बचा, 4 2 जा 8, दो बचा, 4 5 जा 20। अब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे, इट विल बी बाय कैलसी 1250 into 25 is 31250 log 31250 log P is this, therefore P is equal to 31250। तो उस समय की जो पॉपुलेशन है that will be 31,250। कितना इजी सम था, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, आराम से एक दो बार करो, अपने आप ग्रिप आ जाएगी। तो आज ये हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो रहा है, याद रखना, राइट। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर we will start chapter number 10 वेक्टर एल्जेब्रा, सदिशों बीजगणित, बहुत ही बच्चों पपलू सम है, ममरे की तरह है। ममरा सुना है ना आपने कि नहीं? हाँ, उसकी तरह है, मुंह में रखने से ही पिघल जाएगा। क्लियर? सो इट इज वेरी इजी। मतलब अभी जो पोर्शन हमारा बचा है वो सब कुछ इजी है, क्योंकि 10th इज वेक्टर एल्जेब्रा, 11th भी ज्योमेट्री पर वेक्टर पर डिपेंडेंट है, 12th इज प्रोबेबिलिटी विच इज आल्सो इजी, और 13th चैप्टर जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग, उसकी तो बात ही मत करो, वो तो हंसते हंसते खेलते खेलते खाते खाते हो जाएगा, राइट। सो आज मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ एंड होप कि सब कुछ इन टाइम आप रिवाइज करते रहना। ओके, सी यू, बाय बाय।